Hi, I am Dr. Piyush Bhatia. I am the author of this book, Life Beyond Fears, and I am a doctorate in metaphysics and quantum physics. I am a life coach, a business coach, a psychotherapist. My mission in life is to help people identify their barriers, reclaim their power, and live the life they love. So, what inspired me to write this book? So, this book is actually inspired by my own story. There was a time in my life when my health was not working. I had claustrophobia, I had anxieties, I was in a kind of depressive state, and at that point of time my relationships were not working. There was no career, I did not have a career, and I was very unhappy. That was the time when I started looking here and there and started learning about soul, about emotions, about how our brain impacts us, and what is the role of physical body and how diseases happen. So during this journey, I accumulated a lot of knowledge, and I realized that life is not so difficult. It's not difficult to live life, and mostly I understood that diseases are a manifestation of the stuck emotions, and I realized that there were two primary emotions. One is fear and one is love. So if you're not operating from love, you are fearful about life. That's when that fear in the form of different emotions like anxiety, or maybe sadness, or maybe grief gets stuck in your body, and this stuck emotion can create diseases. So I wanted to I also realized that people are stuck in fear. They are stuck in their own head. They say people live between in this we live in this world, but I think people live in between these two ears, and what stops us from living at the fullest potential of our life is the fears that we have. So I wanted everybody to understand and the anatomy of fear, what fear is all about, and how we can overcome this fear and live the life that we all love. This was the purpose of writing this book. I accumulated so much knowledge over the years, and one thing I learned was, when you spread your knowledge, when you spread the information that you have, that's when you benefit the most. So by writing this book, I think I got a lot of clarity about what fear is, how you can overcome fear, and how you can live the life that you love. As I said, I am a life coach, a business coach, a psychotherapist, and a blogger. So I have my own company by the name of Journey Within, where there are 4 verticals to this company, this organization. And in this company, one of the things which we do is I do one-to-one with people, one-to-one coaching with people, where I help people identify where they are stuck in life and how they can move forward, what is stopping them and where they want to reach and what is coming in the way. This is like a surgery. This is like we sit one-to-one with each other, and it's kind of a surgery that the people go through. So we identify, we work on their belief systems, what is the value system they have, what is stopping them, and all the barriers which are there in the way. Second thing is vertical is I conduct a lot of retreats. So my retreats are very popular. I take retreats every month. I'm taking a retreat to some place or the other, and these retreats where we take people on a journey of self-realization, self-transformation, where people are with me for a number of days, and during this period I work on their energy fields. I work with them. There are my set processes. So my third vertical is I do corporate trainings, where I conduct trainings for the middle management and the higher management. And my fourth vertical, which is my baby, is my Life of Joy School, wherein people
enroll for 1 year, and through this 1 year I make them understand about the soul, the body, the emotions, and the IQ, which is the intelligence quotient. So we understand all that, and we also blend science and spirituality, and this gives you a complete understanding about how your mind, body and soul works, and how you can use it to your benefit. So we are so fearful in life. We have a fear of abandonment, we have a fear of failure, we are fearful about the genes we have. So there is something called epigenetics nowadays. Epigenetics means beyond genetics. So earlier we used to think, oh, this is in my genes, then I must have this disease, or I will have this diabetes, or something like that. But now we know that there is something called epigenetics, which means that we can control our genes. We can upregulate or downregulate our genes by our thoughts. And what is fear? Fear is actually false evidence appearing real. It is very different from real danger. So this book gives you an understanding about how these fears got created when we were growing up. So it's a conditioned response, and how you can move beyond. So I have given you, so there are very beautiful tips which I have given, and it's not very difficult to come out of fear. So when you will read this book and you will go through it, you will know that there are small things that we can do in our life to overcome fear. And once we overcome fear, actually everything becomes so easy. हेलो पीयूष, हाउ आर यू? आई एम गुड. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. तो आज कैसा लग रहा है आपको इंटरनेशनल बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर 2023 प्रगति मैदान में? आज आपकी बुक जो है आपके हाथों में है. कैसा कर रहे हो आज आप? आई मीन थिंक अबाउट इट. अब पहले एक टाइम होता था जब मैं छोटी बच्ची थी और बुक फेयर लगता था, और मम्मी और डैडी के साथ और हम सारे बहन भाई मिल के बुक फेयर में आते थे और पागल हो जाते थे. लेकिन आज भी जब मैं बुक फेयर में घुसी तो मुझे किताबें देख के जैसे मुंह में पानी आ रहा था. बट आज फीलिंग ही डिफरेंट थी, क्योंकि आज मेरी बुक वहां पर थी. मुंह में पानी आ रहा था. आई नो. किताबों को देख के मेरे मुंह में हमेशा पानी आता है. तो आज जब मेरी बुक वहां पर थी तो द फीलिंग वाज अमेजिंग. लाइक कुछ अलग ही फील हो रहा था, लाइक एज इफ जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया, ऐसी एक फीलिंग आ रही है. दैट्स ग्रेट. और अभी आपका जैसे फोटो शूट हुआ, जैसे बाहर वॉकिंग हुआ, मल्टीपल शॉट्स हुए, ऑथर साइनिंग सेरेमनी हुई, तो जो अभी आप एक प्रोसेस से अभी गुजरे हो, तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है? कोई स्पेशल रहा उसमें? कुछ आपको क्या फील हुआ? देखो, वैसे भी आपकी जो पूरी सेटअप है उसने मुझे इतना स्पेशल फील कराया, और उसमें सोने पे सुहागा ये था कि एक पर्सन वॉकड इन और वो सबसे पहले उसने मेरी किताब उठाई और उसने उस किताब को देखा और उसने ही वाज टॉकिंग सो गुड थिंग्स अबाउट द बुक. सो ऐसे लगा कि जैसे जितनी सारी मेहनत थी ना किताब को लिखने की, वो सब वसूल हो गया उस मोमेंट में. सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. ग्रेट. तो पहले आप ये सोचते थे कि मैं बुक कभी लिखूंगी, एक आइडिया किसी दिन आया होगा आपके माइंड में, और तब से लेकर के आज जो आपकी बुक है आपके हाथों में है और वर्ल्ड बुक फेयर में लगी हुई है, लोग इसको देख रहे हैं, सेल हो रही है, तो ये जो पूरी जर्नी पेन डाउन के साथ रही और मेरे साथ दिनेश के साथ रही, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? बड़ी इजी जर्नी थी. बहुत मुझे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, इसके अलावा कि मुझे किताब लिखनी है, वो एक मेरे लिए टास्क था. बट उसके अलावा आई थिंक गली बाबा एंड यू टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. मुझे मेरा बहुत स्मूथ राइड रहा है और मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट मिला है. मुझे हर स्टेप पे पहले से मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप्स डिज़ाइन करके रखे हुए थे कि अब ये होगा, अब ये होगा, हम ये होगा. सो इट वाज वेरी सपोर्टिव, and I think you took care of my marketing, the publication, how the book has to be placed, उसका जो न्यूज़पेपर में आएगा, उसका जो आपने एक ऑरा क्रिएट कर दिया किताब का, that was wonderful. That I give all 100 marks to you. थैंक यू सो मच. ये बुक अब थोड़ा सा बताएं कि किसके लिए बनाई है आपने? स्पेसिफिक जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, और आज जब मैं उस बुक को पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा? ओके, तो ये बुक ना बड़ी इजी रीड है. सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि हमारे ना दो मेन इमोशंस होते हैं. एक होता है फियर और एक होता है लव.
एक्चुअली Correct. देखा जाए तो बाकी सब चीजें उसी का बाय प्रोडक्ट है। हम्म, अगर हम ग्रीफ की बात करें तो अंदर कोई फियर है, राइट, कि मैं अकेली रह गई, या अबैंडनमेंट का फियर, या फियर ऑफ कि आई हैव बीन लेफ्ट अलोन, एवरीथिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करें तो फियर ऑफ फेलियर होता है वहां पे। सो अगर देखा जाए तो हर एक चीज के नीचे कोई ना कोई एक फियर है लाइफ में, जो भी हो रहा है। सो अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में फियर इज फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। फियर और डेंजर में हमारे ब्रेन को कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता। हमें यही नहीं पता है कि हम फियर और डेंजर में से किसके साथ डील कर रहे हैं। तो हमें मालूम ही नहीं है कि जो ये चीज हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, जो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को पहले जानना जरूरी है कि वो है क्या। कि वो है क्या। तो इस बुक से आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है ये फियर आया कहाँ से। हमारे अंदर बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कोई फियर नहीं होता, तो ये फियर आया कहाँ से। अब ये फियर के कितने टाइप्स हैं, कितने उसके फेसेस हैं, कितने मास्क हैं, और फिर इस फियर को मैं डील कैसे करूं। तो एंड ऑफ द बुक में आपको प्रॉपर एक तरीके बताए गए हैं, और बहुत सिंपल तरीके हैं। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस निकलेगी कि मुझे फियर से डील करना है। दे वेरी सिंपल टूल्स। तो वो सिंपल टूल्स इस किताब में हैं कि आप इस फियर को कैसे डील करें। और ये किताब सबके लिए है। लाइक अगर मैं कहूँ कि ये किताब इतनी इजी रीड है कि एक टीनेजर भी इसे पढ़ सकता है और एक 65 इयर्स का आदमी भी इसे पढ़ेगा, तो सेम इंफॉर्मेशन, सेम उसको उनको क्या बिजनेस ओनर इसे पढ़ेगा? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बिजनेस 100%, ओनर्स को बहुत तरह का फियर होता है, उनको कुछ वैल्यू मिलेगी 100%। बिकॉज आज के जो हमारा टाइम है, हमें जब भी हमारी लाइफ में का ब्रेकडाउन आता है तो हम डर के मारे कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में, या हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं। हम कुछ बाहर ढूंढते हैं कि कोई हमें ऐसा कोई उपाय दे दे कि हमारा ये फियर चला जाए, राइट? एब्सोल्युटली। बट एक्चुअली में हम ये नहीं समझ पाते कि कुछ चीजें अपने अंदर, एक छोटे से कुछ चीजें घुमानी पड़ेंगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जो बाहर की रियलिटी है ना दिनेश, वो सिर्फ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। सो हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, तो हम अब पूरी दुनिया को डर के चश्मे से देख रहे हैं। जिस दिन हम ये डर का चश्मा उतार देंगे, चीजें बदल जाएंगी। सो इट्स आवर परसेप्शन। मुझे भी इवन व्हेन यू सेड ना फॉल्स evidence appearing real, so that was very wonderful for me even। और आपने बोला कि चश्मे से अगर फियर हटा दें तो एक डिफरेंट, क्योंकि फियर मुझे लगता है हर इंसान को आता है कभी ना कभी, और ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, तो मुझे भी आता है किसी ना किसी पॉइंट पर, बट आई गॉट इंस्पायर्ड अबाउट इट। तो अब आप ये बताएं कि अभी आप क्या लुक फॉर कर रहे हैं कि हम आपको और कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपकी ये बुक राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रमोशन जर्नी में। what more you are expecting from us? Anything? मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, उसे आप अच्छे से लॉन्च करो। अच्छे से That's what I'm expecting। जैसे इसको किया वैसे उसे करें। That's what I'm expecting। Sure, thank you। अब आपका जो बुक लॉन्च है अभी होने वाला है, अभी आफ्टर 2 or 3 days आई थिंक, तो उसके बारे में अभी क्या आपके मन में है कि क्या होगा, कैसा फील कर रहे हो आप उसको लेकर के? एक्साइटेड हूँ। बुक लॉन्च, एक्चुअली ये बुक लॉन्च तो हो चुका है मेरा पहले, लेकिन इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ नहीं है पिछले कई सालों से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इंटरनेशनल बुक लॉन्च में, यू नो, इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे मेरी बुक लॉन्च होगी। सो ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, या दैट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी राइटर, right? Any author। So now that I'm on the journey of establishing myself as a author, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए? बिल्कुल। इसका बेनिफिट के बारे में जानना चाहूँगा। जब आपने बुक पब्लिश की तो आपको अपनी फैमिली से, अपने जो आप जिनको कोच करते हो, आपके कोचीज़ हैं, उनको, या आपके जो गुरुज हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, उनका कोई परसेप्शन में आपने कोई चेंजेस देखा, या कहीं आपको किस तरह का एक्नॉलेजमेंट या किस रूप में एक्नॉलेजमेंट मिला, उसके बारे में थोड़ा? एक अथॉरिटी के तौर पे ना आपकी एक पहचान बन जाती है। Okay। मतलब लाइफ कोच तो मैं पहले से थी, काम बहुत अच्छे से चल रहा था। सो इस किताब को लिखने के बाद एक अथॉरिटी बिल्डअप हो गई है। तो आपको जब आप लोग इस किताब को पढ़ते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर इसकी मास्टरी है। शी इज एन एक्सपर्ट। So that confidence building when it happens in your client, no, your half your job is done। Great। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज हुई है। एंड अभी भी कई बड़ी जगह पे जहाँ मैं जाती हूँ या किसी से मिलना है, तो मेरी किताब मुझसे पहले पहुंच जाती है। तो मेरी किताब के कारण मेरा एक वहां पर एक बिल्डअप हो जाता है कि भाई जो आ रही हैं वो कुछ रखती हैं। या
और इसको मैं अपने सेशंस में भी बोलता हूँ जब मेरे वेबिनार्स होते हैं, मास्टर क्लासेस की, बुक एक तरह से ऐसा होता है जैसे वो उसको बाहुबली जो हाँ 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 मूवी थी हाँ उसमें बोलता है कबूतर को जाओ मेरा संदेश Yeah, लेके आओ, yeah, तो वो yeah, बेसिकली आपका मैसेज दे देती है exactly. दैट यू आर द गॉड Yes. So of you your are, industry. yeah, you are the expert in this field. So that is the thing, and that is helping you to build up your revenue, helping you to build up your business. So it's going good. दैट्स ग्रेट. सो डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू बिजनेस कम्युनिटी, जैसे जिस कम्युनिटी में आप हो, कोचेस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, सेलिब्रिटी कोच, तो कोई आप मैसेज देना चाहते हो बुक लिखने के लिए अपनी कम्युनिटी को? I think book writing is a very good idea. One should write, you know, मेरे को ये समझ में आता है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, तो उसे स्प्रेड करें ना, क्योंकि आप Right. अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? हम अगर सबसे आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे अमीर जगह कौन सी है? सिमेट्री. वहां पर कितने सारे आइडियाज, कितने सारे दबे पड़े हैं, यू नो. अगर तो वो आइडियाज को बुक्स की शेप दो ना. पहले मुझे लगता था बुक्स में बहुत सारे आइडियाज दबे हुए हैं. नहीं, आज पता लगा. सही. हाँ, लोग उन आइडियाज को अपने अंदर ही लेके चले गए, कंप्लीटली है ना. हाँ. तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ना, क्योंकि आप जिस तरीके से बोल सकते हैं वो एक यूनिक है, यू नो. क्या फियर के बारे में और लोगों ने नहीं बोला होगा, लेकिन मेरा एक यूनिक तरीका है उसको प्रेजेंट करने का. आपका तरीका है, आपका एक्सपीरियंस है हाँ, इसमें. और मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा अपना एक यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट है, जो मुझे लगता है कि लोगों को इस तरीके से समझ में आएगा. और इसी पर मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ अपनी, जो मेरी नेक्स्ट बुक है, उसका टाइटल है डोंट डाई विद अ बुक इनसाइड यू. यस, डोंट डाई विद द बुक इन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब मैं ये आइडिया वाला उसमें जरूर डालने वाला हूँ. श्योर. So thank you so much for sharing all the insights, Yeah. and I wish you wonderful authority and Thank greater income and impact Thank you. for through your book. Thank you so much. Thank you.